السلام علیکم جی۔ مختلف یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پی ایم ایل این اور بالخصوص مریم نواز کے اوپر مختلف جگہوں سے جو ہے نا حملہ آور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کے اندر صحافی جو آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھے برے وقت کے اندر بہت اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن اب وہ ویوز کے چکر میں نظر آتے ہیں اور بات کہیں کی ہوتی ہے، گھسیٹ کے کہیں لے جاتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کا جو ایک تاریخی سنہری دور ہے اس کو چھوڑ کر، اور ان کی ابتدا میں یعنی کہ جو وہ جنرل ضیاء کے دور میں جو انسان انہوں نے یعنی کہ جنرل ضیاء کے دور میں جو انسان میاں نواز شریف نے اپنی سیاست شروع کی، اور اس کے اوپر جو انسان آ جاتے ہیں تو مطلب ایک ایسی گمراہ کن گفتگو ہوتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر 40 سال جو ان سے ہیں وہ ماشاء اللہ کے ڈائریکٹلی، اور یہاں پر جو عدلیہ ہے اس کی حیثیت اتنی ہے، اتنی کمتر ہے کہ وہ آج تک یہی نہیں بتا سکے کہ پاکستان کی جو تاریخ کے 40 سال ہیں وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے کا وقت گزرا ہے، اور ہم نے اس کے اندر اس ڈکٹیٹرشپ کو مدد کی ہے، اور جو ڈکٹیٹرز تھے وہ اس قوم کے مجرم ہیں، یہ بتانے میں بالکل فارغ ہیں، جبکہ سیاستدانوں کے اوپر جو انہی دور کو ادوار میں سے نکلے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا تنقید کرنا آج کل کے صحافیوں کا جو ہے نا وہ فرض بنا ہوا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا پائی جاتی ہے۔ اچھا، مریم نواز شریف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے اندر جو اپنی کارکردگی دکھا رہی ہیں، جہاں جہاں پہ جا رہی ہیں، جس طریقے سے وہ عملی طور پہ کام کر رہی ہیں، اس سے بہت بڑا جو فوڈ کا کرائسس ہے وہ قابو میں آیا۔ حالانکہ پنجاب جو ہے وہ تقریباً پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے تقریباً 65 سے 70% کے اوپر اثر رکھتا ہے۔ ڈائریکٹلی اگر کہا جائے تو 55% پنجاب آ جاتا ہے، اور 10% جو ہے نا ایسے علاقے ہیں جو کہ پنجاب سے منسلک رہتے ہیں، بلوچستان کے ایریاز ہیں، کے پی کے ایریاز ہیں، سندھ کے ایریاز ہیں، جو کہ جن کی منڈیاں جو ہیں نا وہ پنجاب کے اندر ہیں، اور یہ اس میں کوئی حرج یا کوئی برائی یا کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ سب کا پنجاب ہے، سب کا سندھ ہے، سب کا کے پی ہے، سب کا بلوچستان ہے، لیکن ایک حصہ ہے۔ اس کی وجہ سے فوڈ کا جو ہے ایک بہت اچھا نظام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اگر 60% ایریا کے اندر، 65% ایریا کے اندر یا 70% ایریا کے اندر اجناس کے ریٹ کم ہوں گے تو باقی کا 30% رہ گیا اس میں بھی آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے، تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ سندھ میں صفر کارکردگی ہے۔ اچھا، یعنی کہ سندھ میں اربن اور رولر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو اربن جو ہے ایریاز، یعنی کہ شہری ایریاز جو سے ہیں، ان کے گلے کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیشہ سے نظر آتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے جتنے ٹیکسز وصول کرنے ہیں، جتنا ہم نے تکلیف دینی ہے وہ ہم نے شہری ایریوں کو دینی ہے، کیونکہ ہمیں تو ووٹ وہاں سے ملتا ہے، اقتدار ہمارا شہروں کے اندر ہوتا ہے۔ اور جو اصلاحات ہیں یعنی کہ رورل ایریاز میں، گاؤں دیہاتوں کے اندر، وہ ہم نے کرنی نہیں ہے۔ ذہنوں کو اتنا معاف کر کے رکھنا ہے، ہر وقت ایک ڈھول بجا کے رکھنا ہے کہ ووٹ بھٹو کا، ووٹ بھٹو کا، ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ نہ اسکول وہاں پہ بہتر بنانے ہیں، نہ وہاں پہ سڑکیں بنانی ہیں، نہ وہاں کے اجناس جو ہیں ان کو پراپر طریقے سے۔ ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر سال سیلاب آ جاتا ہے اور پھر اس میں سے چاول کاشت کیا جاتا ہے، اور وہاں کا جو رہائشی ہے، یعنی کہ وہاں کا جو شہری ہے یا گاؤں دیہات کا جو رہنے والا ہے، ان بیچاروں کی زندگیاں اس قابل بھی نہیں ہو پاتی کہ وہ بچوں کو تعلیم دے کے اپنے دماغوں کو جو انسان ہے وہ چلا سکے، یعنی کہ اپنا فیوچر بہتر کر سکے۔ کون کرتا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے جو فلانا ہے وڈیرا کریسی ہے، نہیں، یہ پیپلز پارٹی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور ٹیکسز اور دیگر آپ دیکھ لیں تو وہ اتنی سہولیات دیتے ہیں شہروں کو کہ بس ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکس مل سکے۔ تو آپ ایک یہ فرق دیکھیں۔ دوسری طرف آپ پنجاب کے اندر دیکھیں، پنجاب کے اندر جو میاں نواز شریف کا جو دور شروع ہوا ہے 1985 کا، 1985 سے لے کے ابھی تک کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں ترقی ہی ترقی نظر آئے گی۔ ایون مشرف کا دور بھی آ گیا تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ
अगर बेहतरी नहीं हुई तो कमी भी नहीं हुई। 2-3 प्रोजेक्ट बड़े भी किए उन्होंने, लेकिन ओवरऑल जो है ना कमी भी नहीं हुई। बना हुआ स्ट्रक्चर था, उसको मतलब वो ख़राब नहीं कर सके। हाँ, उस्मान बुज़दार का यानी कि इमरान खान का वो दौर है जिसके अंदर पंजाब के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना क्रैक डाउन किया गया और बताया गया कि जी ये वसीम अकरम प्लस है, हालांकि उस बेचारे के इख्तियार में कुछ नहीं था। और करने वाले कौन है वो, अगर आप आज भी उस्मान बुज़दार से बुला के पूछ लें तो वो बता देगा कि जी मैं ये तो कहते थे कि अब दफ्तर पहुंचना है और वहाँ पे इलायची वाली चाय पियो या खाने में जो मर्जी खाओ पियो। और वही 20-25 बंदे थे, उनके वो शक्लें भी जानता है, एक ही तरह के कपड़े पहन के आते थे, 2-4-5 फाइलें लेके आते थे, 20-30 फाइलें लेके आते थे, वो कभी साइन करवा कर वो ले जाते थे। यानी कि पंजाब का सारा तरक्याती फंड और ये सब जो है ना, ये जिन लोगों ने इंजॉय किया उनके खिलाफ आज बात भी नहीं कर सकते आप। ना आप उस डॉक्ट्राइन के खिलाफ बात कर सकते हैं, ना इधर कोई बात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, हम उजाड़ के रख देंगे सब कुछ, हमने आधा दे दिया, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम बाकी का भी दे देंगे तो हमसे कौन पूछने वाला है। तो ये बिल्कुल एक सच है। देखें, जब इस पाकिस्तान के ऊपर बड़ी वारदात डल रही थी, अब मैं आ जाता हूँ, कंक्लूड करता हूँ, वो थी 2014 के धरने, और वहां से जो काम शुरू हुआ, यानी कि 2013 में 2012 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि 60-70% ऐसा था एरिया रकबे के लिहाज से जिस पे पाकिस्तान का झंडा ही नहीं लहरा सकता था, और ना वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नज़र आता था। फिर मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार संभालते हैं, उनको पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करती है और इस्टेब्लिशमेंट भी देख लेती है कि अगर हम रोकेंगे तो हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। तो उसके बाद जो इंसाना ये बेहतरी आती है, 2014 में धरने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बाकायदा साजिश होती है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आप हतक इज्जत की या अपना हाई ट्रीजन की कार्रवाई करें, अदरवाइज आप जो इंसाना जो है केस भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हुकूमत फिर वो उधर चली जाती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं भुगतती। फिर उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट चुप करके बैठ जाती है, और ये सारे सहाफ़ी आज उनका फर्ज बनता है कि हर बात को शुरू करने से पहले ये बताएं कि उस साजिश के अंदर सुप्रीम कोर्ट और स्टैब्लिशमेंट, फौजी स्टैब्लिशमेंट, ये मिल के हुकूमत के खिलाफ वारदात डाल रहे थे। और ऐसा ही होता है, फिर उसके बाद वो धरने शुरू कर दिए जाते हैं और ये सब कुछ हो जाता है। और हामिद मीर का आप देखें स्टेटमेंट, लाख इख्तलाफ से लेकिन इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं। उन्होंने धरने, जैसे ही केस दाखिल हुआ था तो उन्होंने लाइव प्रोग्राम में ये बताया था कैपिटल टॉक में कि अब आप देखना कि वो लोग जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते हैं वो कैसे इकट्ठे होंगे और इस हुकूमत के खिलाफ एक जान होके स्ट्रगल करते नजर आएंगे। और उसके बाद ऐसे ही होता है कि एकदम से जनाब ये सारा प्लान तैयार होता है और पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर ये सब कुछ किया जाता है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कमज़ोर है तो स्टैब्लिशमेंट मजबूत है। पाकिस्तान मजबूत हो गया, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो गई, मजबूत हो गई, तो स्टैब्लिशमेंट की फिर ज़रूरत इतनी है ना कि वो दिफा करे, बस बॉर्डर्स पे चली जाए। अभी तो वो ये बता रहे हैं कि फूड के क्राइसिस भी हम हल करेंगे, और बड़े फख्र से बताते हैं कि जनाब हमने इतने अरब टैक्स जमा किया। ये नहीं बताते कि वो पाकिस्तान की जो टोटल टैक्स कलेक्शन है उसका कितना हिस्सा बनता है। ये तो बताते हैं कि इमरान खान का 7% हिस्सा है, लेकिन उस टैक्स कलेक्शन का, और उस टैक्स कलेक्शन की वजह से हमने कितना बेड़ा गर्क किया पूरे पाकिस्तान के, आप कह लें कि निज़ाम कारोबार का, वो भी नहीं बताते। हालांकि वो दूसरों को बताना चाहिए। कहाँ है सहाफ़ी, कहाँ है ये मर्द मुजाहिद अपना मतीउल्लाह जान और दीगर लोग, हसनात मलिक और ये सब जो असद अली तूर, ये जो आजकल इतने हैं वो बने हुए हैं महान, सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में उन्होंने अपनी बाजी पलटी है, या अपने जो आप कह लें कि उनकी जो जद्दोजहद का मरकज है वो कुछ और ही हो गया, व्यूज का चक्कर है सिर्फ और सिर्फ। और देखें आप उनके मतीउल्लाह जान पहले किस घर में थे, अब किस तरह के घर में है। हसनात मलिक को देखें, उनकी तरक्की खुशहाली नज़र आती है, कल्फ लगे हुए सूट और बैठने उठने के तरीके और उनके प्रोग्राम्स करने के तरीके, और फिर दीगर जगहों पे आप देखें तो आपके अंदर आपको उन सबके ना माली तौर पे जो है ना बेहतरी और आसूदगी नज़र आएगी उनकी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ होती है।
जब आप शैतान के रास्ते पे चलते हैं तो यही होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो दीगर लोग हैं जो सीधे रास्ते के ऊपर हैं वो आपको शुरू से स्ट्रगल मियाना रवि के साथ चलते हुए नजर आएंगे। उसके अंदर कमजोर लोग भी हैं और खुशहाल लोग भी हैं, तो ये सब कुछ होता है। बहरहाल इस वक्त में अगर आप देखें तो मरियम नवाज शरीफ पे क्यों अटैक है? इसलिए अटैक है वो काम कर रही है, और काम जो है ना इस पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जब किया जाता है तो सब तरफ से जो है ना उसी को मुतनाज़ा किया जाता है। मुस्तकबिल की जो लीडर है ना वो मरियम नवाज शरीफ बन चुकी हुई है, इसलिए कि आपको नजर आ रहा होगा जिसका मौजू है या नहीं है, वो टिकटॉक की वजीर आला कहे या वो बताए कि जनाब साफियों के ऊपर नए कानून बन रहे हैं। कानून तो बड़े पुराने मौजूद हैं। हालांकि मैं नए कानून बनाने के हक में हूं ही नहीं, मैं इस हक में हूं, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो पुराने बने हुए कानून है उन पर अमल दरामद किया जाए इस वक्त में। और ये जो असम्बली है इस असम्बली को तोड़ देना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्योंकि नुमाइंदा हैं, तुर्क का इक्का है, एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा से शायद ज़्यादा ही कह दिया हो, सैकड़ों दफ़ा में कह दिया हो कि तुर्क का इक्का जो है ना स्टैब्लिशमेंट का वो शहबाज शरीफ है। और ये भी साथ में कहा है कि वो इंतहाई ऑनेस्ट है लेकिन बेवकूफ़ आदमी है, बेड़ा गर्क कर दिया, पार्टी का एहसास नहीं है। और फिर वो कहते हैं पाजी, अच्छा पाजी मैं हूं ना, अच्छा वो कहते हैं पीछे हट जो, नहीं पाजी मैं हूं ना, बस ये चीज़ है। इसके अलावा पाजी की जो ना सियासत यानी कि पाकिस्तान की अवाम की वाट लगा के रख दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए कि उनको चुक देने वाले जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं और ये चुक में आए हुए हैं। वो कहते हैं बस ठीक है यहाँ पे आंखें बंद रखो, बाकी जो है ना क्या कहते हैं टोल के ऊपर जो है ना नाचो गाओ, और तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी सियासत में एक बल्कि मैं क्लिप देख रहा था तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त वो बनाया हुआ था डमी शहबाज शरीफ साहब का कि जी अगर आप फेल हो गए तो उसने कहा कि वो फिर नवाज शरीफ के ज़िम्मे, और पास हो गया तो मैं हूँ। यानी इतनी तो समझ आया उनको, इसमें कुछ शक नहीं। तो मुझे बार बार कहा जाता है तो मेरी कोई जो सोर्स है वो यही बताता है, मेरे जो सोर्स में जिस ग्रुप में जहाँ से मेरे मालूमात लेता हूँ तो वो यही बताते हैं कि ये इंतहा दर्जे का जो है ना काम करने वाला शख्स है, जुनूनी। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो न्यूज़ आ जाती हैं वो ये कहते हैं कि ना ये काम करने वाला रहा है, ये अपने भाई के खिलाफ साजिशें करने वाला, अपनी पार्टी के खिलाफ साजिशें करने वाला, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलने वाला और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलने वाला, और कुछ मतलब पल्ले नहीं रहा। एक माजी है बहुत अच्छा है लेकिन जो हाल है वो बदहाल है। शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।